لگتا ہے کہ سب کچھ غلط سمت کی طرف جا رہا ہے۔ پیسہ کمانا، چھوٹے کپڑے اور آزادانہ جنسی تعلقات قائم کرنا خواتین کے حقوق کا واحد معیار نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت میں ہم مرد خواتین کے حقوق کا منتر سکھاتے ہوئے انہیں بطور صرف سامان استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سی خواتین کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ آج کی دنیا میں وہ مردوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئیں، اور ہم مرد تسلیم کر رہے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے عورتوں کو ہمیشہ ایک پیٹری آرکل معاشرے میں زیر کیا جاتا رہا ہے۔ مردوں نے ہمیشہ عورتوں کو وہ عزت اور وقار نہیں دیا جس کی وہ حقدار ہیں۔ بطور انسان، ماؤں، بیویوں، بہنوں یا بیٹیوں کی حیثیت سے مردوں نے ہمیشہ اپنی جسمانی طاقت کا استعمال خواتین پر ناجائز اور بے شرمی کے ساتھ کیا ہے، لیکن سارے مرد نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خواتین کے پاس قابلیت یا ذہانت نہیں ہے، بالکل کیوں نہیں۔ بہت سے معاملات میں مردوں سے کہیں زیادہ قابلیت اور ذہانت یقینی طور پر خواتین یا مرد ہونے پر منحصر نہیں ہے۔ اگر تعلیم کا موقع فراہم کیا جائے تو خواتین مردوں سے آگے نکل جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو نوکری، کاروبار یا کسی اور پیشے میں ملازمت نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ خواتین کے حقوق کا واحد معیار نہیں ہونا چاہیے۔ زنا اب سورج کی روشنی کی طرح مفت ہے، تم بہت دور آ گئی ہو، اور ہم معاشرے سے کہتے ہیں کہ یہ نیا طرز زندگی ہے، اور ہم شیک اپ کرتے ہیں شادی کے بغیر تعلقات، اور جب ایک دوسرے سے جھگڑا ہو تو ہم شیک آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ میرا جواب ہے۔ ضروری نہیں آپ مجھ سے اتفاق کریں، آپ کو مجھ سے اختلاف کرنے کی آزادی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں غلط ہوں جب تک آپ یہ نہ بتا دیں درست کیا ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے نا؟ یہ جائز ہے نا؟ آئیں مجھے جواب دیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں غلط ہوں جب تک آپ یہ نہ بتا دیں درست کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کی طرف جانے والوں میں آخری خواتین ہوں گی، دجال کی طرف جانے والوں میں آخری خواتین ہوں گی، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب دجال کا مقصد اپنے عروج کے قریب ہوگا تو کچھ عجیب چیز خواتین کی دنیا کو لپیٹ لے گی، ان کو دھوکے میں لایا جائے گا، سراسر دھوکا کہ جو بظاہر ان کو ترقی کا راستہ نظر آئے گا، جس کو وہ بے تابی سے اپنا لیں گی اور قبول کریں گی، جو بظاہر ان کو خواتین کی دنیا میں ایک انقلاب نظر آئے گا جو اس سے پہلے انسانی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ دراصل دجال کا دھوکا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ میرے نظریے سے متفق ہوں گے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی آج جدید حقوق نسواں انقلاب کی صورت میں کھل چکی ہے، اور خواتین کے لیے اس کی نام نہاد جد و جہد۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اس طرح پیدا فرمایا جیسے دن اور رات۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں، تم عملی طور پر مختلف ہو، لیکن آخر الزمان میں وہ کہتی ہیں ہمیں اس سے اختلاف ہے، وہ کہتی ہیں ہمیں قرآن پاک سے اختلاف ہے۔ ہر وہ کام جو مرد کرتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے، تاکہ رات کوشش کر سکے دن بننے کی، لیکن رات کے دن بننے کے عمل میں اب وہ خود کے لیے روزگار تلاش کر رہی ہے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب خود کے لیے روزگار تلاش کر رہی ہے۔ کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا کہ آپ کے پاس دماغ نہیں ہے، یقیناً آپ کے پاس دماغ ہے، ہماری ماؤں کے پاس بھی دماغ ہے، اور بعض اوقات ہمارے والد سے بھی زیادہ۔ کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا کہ آپ کے پاس دماغ نہیں ہے، چونکہ وہ اپنے کریئر کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور صبح کو کام پر جا رہی ہے، باقی لوگوں کی طرح صبح کی ٹریفک کا سامنا کر رہی ہے، اور شام کو گھر آ رہی ہے، باقی لوگوں کی طرح شام کی ٹریفک کا سامنا کر رہی ہے۔ پھر آپ کو پکا پکایا کھانا خریدنا پڑتا ہے۔ ہاں، اور بچے ان کو ڈے کے سینٹر میں چھوڑ دیں یا پھر پاس والے ہمسائے کے گھر۔ اس حدیث کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو خواتین
दज्जाल के झांसे में आ जाएंगी, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। ब्रेन वॉश मतलब आप उनसे बात करके समझाने की कितनी ही कोशिश कर लें, आप उनको आमादा नहीं कर सकते। आपकी हर कोशिश बेकार है, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उनसे बात करना और तंबीह करना ऐसा है जैसे बतख की पुश्त पर पानी फेंकना, जो सिर्फ बह जाएगा। ब्रेन वॉश किया गया है, वो अक्लमंदाना सोच की सलाहियत खो देंगी और दज्जाल के हाथों के रोबोट्स आलाकार बन जाएंगी, जो दज्जाल के फरेब में फंस गई हैं। हमारा कहना है कि ये वजाहत है इस हदीस की, ये वजाहत है जदीद मगरबी हकूक निस्वा इनकलाब की, जो पिछले 100 सालों से दुनिया को तूफान से दो चार कर रहा है। जदीद मगरबी हकूक निस्वा इनकलाब का मंसूबा साज दज्जाल है। तारीख में हमेशा हर तहजीब ने मर्द और औरत के माबैन एक अहम फर्क को तस्लीम किया है। मर्दों के लिए मुआशरे में काम है और औरतों के लिए मुआशरे में काम है, और ये दोनों बायोलॉजिकली हयातियाती लिहाज से बनाए गए हैं और जिस्मानी लिहाज से बनाए गए हैं, ताकि अपने बाहमी बुनियादी अमूर सर अंजाम दे सकें। साथ जदीद मगरबी तहजीब आकर कहती है, नहीं, गलत, हर काम जो एक मर्द करता है औरत को वो करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। और इस तरह अब ख़वातीन मुआशरे में मर्दों का किरदार अदा कर रही हैं, और अब वो पूरा वक्त काम कर रही है। और आप पूरा वक्त काम नहीं कर सकते जब तक आपके घर में कनीज ना हो, ताकि घर की देखभाल करे। एक कनीज क्या है? अगर उसे काम की उजरत मिल रही है जो कि सही उजरत है तो वो कनीज नहीं है, लेकिन अगर उसे काम की वो उजरत मिल रही है जिसके लिए आपकी खातून काम नहीं करेगी, फिर वो एक कनीज है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या कोई सिंगापुरियन खातून सिंगापुर में काम करेगी? सुबह सवेरे से देर रात तक, हर रोज, लगातार, पूरा महीना, बगैर किसी छुट्टी के, उस उजरत के लिए जो आप एक सिंगापुरियन काम करने वाली घरेलू खादमा को देते हैं? नहीं। तो फिर क्यों सिंगापुर, क्यों आप लोग मेरी बेटियों को बेशर्मी से कनीज बना रहे हैं? बतौर मुलाजमा, बतौर घरेलू खादमा के, वो सुबह को सबसे पहले जागती है सिंगापुर, वो रात को सबसे आखिर में सोती है सिंगापुर। मेरी बेटी बतौर एक कनीज काम कर रही है, उसके लिए कोई छुट्टियां नहीं है सिंगापुर। और जो कुछ भी तुमने हार्वर्ड में पढ़ा साफ शफाफ मार्केट के बारे में, सिंगापुर, तुमने वो सब जमा करके कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। सिंगापुर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने इंडोनेशिया के साथ उसे ज्यादा से ज्यादा $300 फी महीना देने का मुआहिदा किया है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो सिंगापुर। क्या कोई सिंगापुरियन खातून $300 फी महीना पर काम करेगी या $500 महीना पर? नहीं, 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 कोई नहीं। लेकिन मेरी बेटी को कनीज बनाना है, ये रिबा है, लिहाजा वो एक कनीज है। तो जदीद मगरबी खवातीन के इनकलाब की कीमत ये है कि आपको घर में जरूर एक कनीज रखनी होगी, ताकि वो घर के काम के लिए आपकी जगह ले सके और तुम पार्ट टाइम माँ बन जाओ और वो कनीज बाकी का तमाम काम करे। ये तल्ख जुबान है। ना सिर्फ उस तहजीब ने हमें काम करने वाली खवातीन और बच्चों के डे केयर सेंटर दिए, यानी खवातीन के लिए काम और फिर बच्चों के डे केयर सेंटर, और वो अब खुद पार्ट टाइम के लिए माँ है, बल्कि उस तहजीब ने हमें कुछ और भी दिया। खवातीन जिन्होंने लिबास पहना है और नहीं भी, तारीख देख लें कि खवातीन हमेशा ढांपी हुई यानी मुकम्मल लिबास में रही हैं, मगर अब उन्होंने लिबास पहना है और नहीं भी, अल्लाह ताला ने उसे खूबसूरत बनाया है। और जूं जूं वो लिबास को कम करती है, मर्दों के लिए इश्तियाल अंगेजी में इजाफा होता है। क्या ये सब हादसाती तौर पे हो रहा है? ये वहाँ शुरू होता है और फिर वायरस की तरह पूरी दुनिया में फैल जाता है। लिबास में यह इनकलाब, चूंकि उसने लिबास पहना है और नहीं भी, तो जाहिर है इससे जिनसी रद्द अमल आता है, जो जिनसी इनकलाब को बढ़ावा देता है। जहाँ वो हदूद और पर्दे मुआशरे की तरफ से लगाए गए थे, जिनसी ताल्लुकात के हवाले से इन्हें खत्म कर दिया गया है और आखिरकार
जिना अब सूरज की रोशनी की तरह मुफ्त है, तुम बहुत दूर आ गई हो। जिना अब सूरज की रोशनी की तरह मुफ्त है, तो अब नतीजा होगा सरेआम बदकारी। बिल आखिर लोग शादी करने की परेशानी मजीद नहीं उठा रहे। वो कहते हैं कि शादी परिंदों के लिए है। हम जवान हैं, हम अलग तरीके से रहते हैं, हम शेकअप करते हैं। एक लड़का और एक लड़की फैसला करते हैं कि हमें साथ रहना है, तो हम शेकअप करते हैं और हम मुआशरे से कहते हैं कि ये जदीद तर्ज जिंदगी है शेकअप करना, और जब हमारा झगड़ा होगा तो हम अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। तो ये जिना अब आम और काबिल कबूल हो गया है। और इसी तरह से जिस चीज को बुरा तस्वुर किया जाता था, जिना अब आम और काबिल कबूल हो गया है। क्या ये हादसाती तौर पर रूनवा हो रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो हम पूछते हैं कि क्या वजाहत है इसकी? हमारे पास इसकी वजाहत मौजूद है इल्म आखिरुज़्ज़मा में, और ये हमारी वजाहत है। अगर आपको हमसे इख्तिलाफ है तो बताएं आपकी क्या वजाहत है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिनसी इनकलाब के बारे में वजाहत की थी। ये महज जिना नहीं है, नहीं। बिल आखिर इतनी औरतों के बाद आप नुक्ताए इंतहा को पहुंच जाते हैं, और फिर आपके जज्बात नहीं जागते, फिर आप किसी और चीज की तरफ मुड़ते हैं। तो ये जिनसी इनकलाब बिल आखिर लाजमन हम जिन्स परस्त और लेस्बियनिज्म की अफजाइश करेगा। ये नागुज़ीर है, और ये सब आज पहले ही दुनिया में हो रहा है, लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं है। बिल आखिर आप हम जिन्स परस्ती और लेस्बियनिज्म से आगे कुछ ढूंढेंगे अपनी इस लज्जत को हासिल करने के लिए। अब कुछ काम नहीं कर रहा और मैं मजीद की तलाश में हूँ जो लज्जत दे सके, तो फिर आप बच्चों की तरफ जाते हैं। ये आज दुनिया में काफी ज्यादा हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फैल रहा है। बच्चों के साथ जिनसी फेल करना, क्या ये इस जिनसी इनकलाब की सड़क का इख्तिताम है? नहीं, अभी जानवर बचे हुए हैं, अभी जानवर बचे हुए हैं। फिर हमने उसे गिरे हुए से भी गिरा दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस अजीब व गरीब मज़ाहिर, इस जिनसी इनकलाब के बारे में हमारी रहनुमाई फरमाई हुई है, और उन्होंने फरमाया था कि ये दज्जाल का जिनसी इनकलाब होगा। अगर आपके पास कोई और वजाहत है आपकी यूनिवर्सिटी के जेंडर अफेयर्स डिपार्टमेंट में, तो आओ हमें बताओ, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। आपकी वजारत या यूनिवर्सिटी के जेंडर अफेयर्स डिपार्टमेंट की वजाहत का हमारा कहना है कि ये दज्जाल का जिनसी इनकलाब है। दूसरे अल्फाज में ये कि दज्जाल खवातीन का ब्रेन वॉश कर रहा होगा, और दज्जाल इनको ऐसे मेस्मराइज और हिप्नोटाइज करेगा कि वो इनका जी मोह लेगा और वो सोचने और समझने की सलाहियत खो बैठेंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि बरतानिया ने, जजीरा बरतानिया ने हकूक निस्वां इनकलाब को शुरू किया और बढ़ाया। मैंने ये सब मालूमात इसलिए पेश की हैं इस मामले पर दलील देने के लिए कि तमीम उद्दारी की हदीस में जिस जजीरे का जिक्र है वो जजीरा बरतानिया है। तो मेरा जवाब ये है कि तमीम उद्दारी का जजीरा बरतानिया है।